Hello everyone, welcome back to our channel MCA Gyan. So in this video we are going to cover the English portion of last year MCA CET. Okay, MCA Maharashtra CET exam questions we are going to cover in this video. So let's see. So the first question we are going to see is read the statement and answer the question. In this question, basically you have to read the statements and answer the questions accordingly. So the first statement we have is all the birds can fly, and the question which comes from this statement is can birds fly? Sorry, can penguins fly? Okay, so let's see the options. So first option is yes, but only some penguins can fly. So we know this कि penguins cannot fly. ठीक है, ये बहुत बेसिक है, तो this one will be wrong. No, because they are birds. This is also not appropriate option. Yes, because they are birds. This is also wrong answer. And D, no, because penguins cannot fly. So this is basic question. ठीक है, आप लोगों को पता है कि penguins fly नहीं कर सकती है. So this will be the correct option. Now let's proceed to the next question. What does the phrase beyond the pale means? So what does the phrase beyond the pale means? Beyond the pale का मतलब क्या होता है? So basically beyond the pale means beyond the limitation. ठीक है, beyond, और हिंदी में we can say कि सीमा से बाहर जो चीज है, that is beyond the pale. Now let's see the options. The pale colored boundary, within the acceptable limits, unacceptable or outside the boundary of decency, beyond the scope of understanding. So this one will be the appropriate, that unacceptable or outside the bounds of decency. मतलब क्या हो गया? Beyond the pale means क्या हो गया? Basically कि आपके सीमा से बाहर जो चीज हो गई वो हो गया, आपके जो सीमा से बाहर जो चीज हो गई, that is beyond the decency. Let's see the next question. Identify the correct sentence. Now let's see the sentences. I don't know who are you. Next one, whom you are, I don't know. I don't know who you are. I don't know who you are. So this one looks more appropriate. Let's proceed to next question. That is complete this. Clock is to time as thermometer is to what? This is very basic, very easy one. Thermometer is to temperature. Okay, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं. अगर आप लोग थोड़ा सा इंग्लिश को पढ़ोगे तो इट्स वेरी इजी फॉर यू कि आप ये सब आंसर्स को आराम से क्रैक कर सको. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस विद द करेक्ट वर्ड यूसेज. लेट्स सी द क्वेश्चन. लेट्स सी द सेंटेंसेस. द डेजर्ट वाज कंप्लीटेड विद अ dollop of whipped cream. Okay, so first, what is dollop means? Dollop means you can say slog, बड़ा टुकड़ा जो रहता है, that is dollop. ठीक है, तो the dessert was completed with a dollop of whipped cream. So this one completed, क्या ये हम लोग को सही लग रहा है? No, this is not right, क्योंकि इसका मतलब क्या जा रहा है कि डेजर्ट क्या हो गया? कंप्लीट हो रहा है किससे? Dollop of whipped cream. उतना सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं लग रहा है. ओके, correct word usage. Okay, to see in every word we have in every sentences we have different word. Completed, in this complimented, this one is also complimented,
नेक्स्ट वन इज कॉम्प्राइजेस. ओके, सो ये तो कॉम्प्लीमेंटेड का स्पेलिंग ऑलरेडी रॉन्ग है, तो दिस वन विल बी रॉन्ग. हम लोग इसको बेसिकली एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो हमारे लिए ज्यादा इजी होगा. और ये वाला तो रॉन्ग है. कंप्लीटेड, कंप्लीटेड इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा डेजर्ट कंप्लीट हुआ है whipped cream से, दैट इज रॉन्ग. Okay, so this one will be the right option, that the dessert was complemented with a dollop of whipped cream. ठीक है. Com Okay, now proceed to the next question. Complete the sentence. Complete the sentence. Let's read the sentence. The successful negotiation resulted from their dash approach. The successful negotiation resulted from their dash approach. Okay, so now in this, let's understand each word. Confrontational. कॉन्फ्रेंटेशियल मीन्स क्या हो गया कि जब हम लोग कोई गुस्सा में बिहेव कर रहे हैं, दैट इज दिस. ठीक है, तो नेगोशिएशन कैसे गुस्से में हो सकता है? इज इट पॉसिबल? सो नो, दिस वन विल बी रॉन्ग. कंटेंशियस. कंटेंशियस मीन क्या हो गया? जब समथिंग विच लाइकली टू कॉज आर्ग्यूमेंट, जिससे आर्ग्यूमेंट होने की चांसेस है. ठीक है, दैट इज कॉन्टेंशियस. सो दिस वन विल बी ऑल्सो रॉन्ग. एमिकेबल. तो एमिकेबल मीन्स क्या हो गया? फ्रेंडली. सो आई थिंक दिस वन विल बी द राइट ऑप्शन. एंड कॉम्प्रोमाइजिंग. सो कॉम्प्रोमाइजिंग इज ऑल्सो मतलब हो सकता है, लेकिन बेटर क्या हो गया? एमिकेबल. क्योंकि नेगोशिएशन कैसे होता है? जब आपका नेचर अच्छा हो, इफ यू हैव अ गुड नेचर, इफ यू हैव काइंड नेचर, फ्रेंडली नेचर, देन ओनली नेगोशिएशन इज पॉसिबल. इफ यू आर गोइंग टू सम वेंडर and you are talking them sweetly, then only they'll negotiate. Okay, if we'll go and say ki are nahi, you have to negotiate, that's not possible, right? So amicable will be the correct option. Next, arrange the following sentence into coherent paragraph. इसको आपको पैराग्राफ में अरेंज करना है. Let's read the sentence. Despite the challenges the team perceived. तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना होगा ना? फर्स्ट गो थ्रू ऑल द सेंटेंसेस. ठीक है, आप सारे सेंटेंस को देखो और उसके बाद चेक करो कि फर्स्ट कौन सा सेंटेंस आ रहा है, और उसके बाद आप सेंटेंस को मैच कर सकते हो. ठीक है, सो फर्स्ट, डिस्पाइट द चैलेंजेस द टीम परसीव्ड, इन द एंड देयर हार्ड वर्क पेड ऑफ. फर्स्ट, they faced unexpected setbacks, then strategic plan was devised. तो आप लोग देखो, आप लोगों को क्या लग रहा है? सी, फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट, they faced unexpected setback. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सी कहाँ कहाँ है. तो सी एक यहां पर है. In this option we have C and in this option we have C. Now go through. फिर डी डी दोनों में है. ऐसे करके आप एलिमिनेट करके ना आप जल्दी भी सॉल्व कर सकते हो. देन ओके, लेट्स रीड. फर्स्ट, दे फेस अनएक्सपेक्टेड सेटबैक्स, देन स्ट्रेटेजिक प्लान वाज डिवाइज्ड, और उसके बाद क्या होगा? डिस्पाइट द चैलेंजेस द टीम परसीव. तो फर्स्ट सी, देन डी, ए एंड बी. दिस वन विल बी राइट. लेट्स सी किस में आता है? ए बी. सो दिस वन विल बी रॉन्ग. दिस वन विल बी द राइट option. Okay, yes. Let's proceed to the next question. Choose the antonym for voracious. Voracious. So first let us understand what does voracious means. So voracious means basically whenever we wanted to eat, or whenever we starve for some food, that is voracious. मतलब जब बहुत ज़्यादा खाने का मन करता है, when we starve for something, that is voracious. So तो हमें इसका अपोजिट देखना है. तो मॉडरेट मतलब क्या हो गया कि सही मात्रा में. ओके, बैलेंस्ड अप्रोच, when we show balanced approach, that is moderate. तो I think this one will
दिस वन विल बी करेक्ट. इंसैटिबल, इंसैटिबल मतलब क्या हो गया, जब कोई सेटिस्फाई नहीं हुआ, दैट इज insatiable. hungry, you all know hungry. and starving, starving means again जब बहुत ज्यादा भूख लग रही हो ना, that is starving. so moderate will be the correct option. okay, identify the sentence with the correct punctuation. आपको correct punctuation देखना है कि कहाँ पे कॉमा हमारा लगेगा. okay, I visited Paris, France in summer. सो फर्स्ट सेंटेंस क्या बता रहा है हमें कि मैं पेरिस गया और फ्रांस समर में. ठीक है, आई विजिटेड पेरिस और पेरिस फ्रांस, पेरिस भी और फ्रांस भी इन समर. आई विजिटेड पेरिस फ्रांस इन समर, दिस वन विल बी रॉन्ग फॉर श्योर. आई विजिटेड पेरिस फ्रांस इन समर, दिस वन विल बी ऑल्सो रॉन्ग. और आई विजिटेड पेरिस, मैं पेरिस गया फ्रांस इन समर, सो दिस वन ऑल्सो डजंट लुक एप्रोप्रिएट, सो दिस वन विल बी द एप्रोप्रिएट सेंटेंस. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वर्ड. ओके, कॉन्शियसनेस, which one will be the correct CON? you will have to in this type of question, दो चीज का आपको ध्यान देना. फर्स्ट गो थ्रू ऑल द वर्ड्स एंड देन आप देखो कहीं उसका स्पेलिंग कुछ मिस्टेक है या कुछ भी रॉन्ग है, तो आपको आइडेंटिफाई वो करना है. ठीक है, तो इनकरेक्ट वर्ड क्या हो गया. ओके, तो देखिए इसमें आप वर्ड्स देखिए. कॉन्साइंसियस, आई थिंक दिस वन इज द रॉन्ग, क्योंकि कॉन्साइंसियस का स्पेलिंग इज, ये वर्ड कुछ होता नहीं है. एक वर्ड होता है CONSCIENTIOUS, कॉन्शियसनेस. इसका मतलब आपका क्या हो गया, ईमानदार. ठीक है, केयरफुल टू डू समथिंग, और इसका मतलब ये होगा केयरफुल टू डू समथिंग करेक्ट वे में. जब हम लोग करते हैं, जो इंसान केयरफुली करेक्ट वे में करता है, दैट इज कॉन्सेंटियस. और ईमानदार भी हम लोग इसका मतलब होता है. ठीक है, so this one will be the incorrect and this one will be the correct option. let's proceed to the next question. देखो यहाँ पे कैंडिडेट रिस्पॉन्ड कॉन्शियस दिया हुआ है. ठीक है, कॉन्शियस मतलब क्या हो गया, जब हम लोग कोई चीज को when we are able to see something, ठीक है, ability to see और hear, that is conscious. for example हम लोग बोलते हैं ना कि are you conscious at this situation, are you conscious, या फिर at that situation were you conscious, क्या तुम कॉन्शियस थे, तुम सुन सकते थे, तुम देख सकते थे, मतलब उस स्थिति में थे, दैट इज कॉन्शियस. हम लोग कभी बोलते आई वॉज नॉट कॉन्शियस, दैट मीन्स कि वी वर नॉट एबल टू हियर और सी द थिंग्स. ओके, कॉन्साइंस, कॉन्साइंस मतलब क्या हो गया, द पार्ट ऑफ योर माइंड दैट टेल्स यू व्हाट यू आर डूइंग राइट और रॉन्ग. जो हम सही कर, हमारे माइंड का वो पार्ट है जहाँ जो हमें बताता है कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या रॉन्ग कर रहे हैं. और कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब तो दैट समथिंग दैट हैपेंस. ठीक है, जो कि हुआ है. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस. ओके, सो एक्टिव वॉइस में आपको सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है. द बुक has been read by Mary. no, Mary read the book. this one will be in the active voice. the book was read by Mary. no, ये तो पैसिव चला गया. the book will be read by Mary, ये तो करेक्टली कंप्लीटली रॉन्ग सेंटेंस है, तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, in the context of sentence, what does the word mitigate means? the new policies are expected to mitigate the impact of climate change. तो mitigate मतलब क्या होता है, reduce. ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, न्यू पॉलिसीज क्या हो रही है, वो क्लाइमेट चेंज को mitigate the impact of climate change, it will reduce the impact of climate change. ठीक है, तो यहाँ पे
reduce will be the correct option. Okay. Next question, improve the sentence. The concert was so good, it made me to cry. No, it made me cry. This one will be the correct option. Making me cry, ये तो हो ही नहीं सकता. It made me to cry. No. It makes me cry. No, this one will be the correct option. Next question, choose the correct idiom. Okay, so ये बहुत interesting है. See this one. He decided to play it by. Mostly लोग इसमें confuse होंगे. Might be possible कि वो wrong भी कर सकते हैं. इसके लिए see, it's very important. मैं try करूँगी. मैं नेक्स्ट ईडियम्स, वर्ड मीनिंग्स, ये सब वीडियो अपलोड करूंगी जिसको आप गो थ्रू करोगे तो ये सब बहुत सारी ईडियम्स आपको क्लियर होंगी. सो इस ईडियम में क्या होगा आप लोग पहले गेस करो. ही डिसाइडेड टू प्ले इट बाय व्हाट? हियर, ईयर, ईयर और फियर. सो सी दिस ईडियम, द ईडियम इज ही डिसाइडेड टू प्ले इट बाय ईयर. सो इस ईडियम का मतलब क्या होता है ना, मीन्स जब कोई व्हेन वी डू समथिंग विदाउट प्लानिंग, जब हम कोई चीज विदाउट प्लान के करते हैं ना, दैट टाइम वी यूज दिस ईडियम दैट ही डिसाइडेड टू प्ले इट बाय ईयर. मतलब उसने किया अनप्लान्ड, वो उसने काम करने का कोशिश किया या उसने एकदम डिसाइड किया कि वो काम अनप्लान्ड होगा. ठीक है, जैसे कि ही डिसाइड मतलब प्लेड बाय ईयर का आप और एग्जाम्पल ले सकते हो कि आई एम नॉट श्योर विल बी एबल टू डू दिस. ओके, सो इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या देखना है कि यहाँ क्या होगा? ईयर. क्यों ईयर होगा? ये एक इडियम है, प्लेड बाय ईयर. प्लेड बाय ईयर का मतलब क्या होता है ना कि जब हम लोग कोई चीज बिना प्लान का करें या फिर जब प्लान circumstances के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, दैट टाइम वी यूज प्ले इट बाय ईयर. दिस इज द करेक्ट इडियम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द सिनोनिम्स ऑफ ubiquitous. What does this word means? This word basically means very common. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? वेरी कॉमन, जो बहुत आम है. तो वेरी कॉमन का क्या हो गया? रेयर तो होगा नहीं. रेयर व्हाट इज, मतलब बहुत कम मिलता है, दैट इज रेयर. स्केर्स, स्केर्स मीन्स कमी. अबंडेंट, अबंडेंट मीन्स बहुत ज्यादा. एक्सक्लूसिव मीन्स नॉट easy to catch. So which one will be the correct? Abundant. Okay, next question is choose the correct meaning of the word vicissitude. अब vicissitude थोड़ा complicated है, but vicissitude का मतलब क्या होता है? बेसिकली changeable circum, जब circumstances हम change कर सकते हैं, जो change हो सकते हैं circumstances, उसको हम vicissitude बोलते हैं. तो this one will be the correct option. Yes. Next, read the paragraph and answer the question. The sky was dark and the thunder echoed in the distance. People hurriedly closed windows anticipating a heavy rain. तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि स्काई क्या था? डार्क था और थंडर की आवाज, उसके इको की आवाज डिस्टेंस से आ रही थी और पीपल जल्दी जल्दी अपने विंडोज को क्लोज कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि बारिश होने वाली है. ओके, सो इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज लाइकली वेदर कंडीशन? तो वेदर कंडीशन क्या था? यस, वेदर कंडीशन विल बी रेनी. ओके, आई डोंट नो इसने विंडी क्यों किया है. विंडी में बारिश होने की चांसेस कैसे लग सकती है? ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन वी हैव राइट द एंटोनिम ऑफ मेलिफ्लुअस. सो मेलिफ्लुअस मीन्स क्या हो गया? स्वीट और सूदिंग. जो स्वीट और सूदिंग होता है ना, दैट इज
मेलिफ्लुअस, तो मेलिफ्लुअस मीन्स मेलोडियस तो नहीं, मेलोडियस तो बेसिकली क्या हो गया, जो सुरीला हो गया, तो ये एंटोनिम तो नहीं हो गया, ये नहीं होगा। हारमोनियस भी ऑल्सो, कि जिसको हम सुन सकते हैं, सुनने में अच्छा हो। डिस्कॉर्ड, यस डिस्कॉर्ड हो सकता है। डिस्कॉर्ड मतलब, डिस्कॉर्ड इज बेसिकली दैट इज जब आर्ग्यूमेंट मैच नहीं करे या फिर जो अच्छा नहीं हो, उतना सुरीला नहीं हो, दैट इज डिस्कॉर्ड। और डिलसेट मीन्स ऑल्सो स्वीट, ठीक है, स्वीट और सूदिंग। सो दिस वन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, डिस्कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, read the passage and answer the question. The sunflower follows the sun throughout the day, a behavior known as heliotropism. What is the reason for this movement? ये movement क्यों होता है? sunflower का जो movement होता है, जिसके थ्रू वो हमेशा सन की तरफ फेस करके रखता है, ठीक है, हेलियोट्रोपिज्म जिसको बोलते हैं, वो क्यों होता है? टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स? नो, नो, टू एब्जॉर्ब मोर सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस? यस, ये तो बेसिक क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट, जैसे कि आपको पता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो टू अट्रैक्ट दैट, सनफ्लावर अपना फेस सन के साइड रखता है। टू अवॉइड प्रेडिटेटर्स? नो। फॉर एस्थेटिक पर्पस? नो। Next question, and I think this one will be the last question. Yes. Next question. Arrange the following sentences to form a coherent paragraph. ठीक है? In this, what we have? She went to the store after finishing her homework to buy some groceries. Mary decided. Okay. So आप इसमें देखो, आप क्या है कि she went to the store after finishing her homework to buy some groceries. Mary decided. Mary decided. Okay, Mary decided to buy some groceries after finishing her homework. She went to the store. For Mary decided to buy some groceries. Okay, so this one is not an option. Mary decided after finishing her homework to buy some groceries. She went to the store. ये हो सकता है. Yes, yes, yes. ये हम देख सकते हैं. After finishing her homework, Mary decided to buy some groceries. She went to the store. Yes, this one will be the right option of this question. So by this we finish this English portion of MCA CET Maharashtra CET exam questions. तो आप लोग क्या करो, इसको प्रैक्टिस करो, एंड ऑल्सो व्हाट यू डू कि वोकैब्स पढ़ो, ट्राई टू रीड न्यूज़पेपर्स, एंड ऑल्सो सबसे इंपॉर्टेंट है, डेली कुछ ना कुछ वर्ड्स आप याद करो, जो कि आपके लिए अब बहुत कम टाइम है, तो आपके इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा.